A very good evening, everyone, and we welcome you all to the iconic CCNFC, Calcutta Cricket and Football Club, that has been the host to several clubs. But today, we are all set to witness a historic sport in India, and that has been spreading its roots for a while now, more than 5 decades to be precise, and that is cycle polo. All India Invitational Cycle Polo 2024 is all set. Today is the final day of the clash, and this is an exhibition contest, and for this match we have got CCFC, the hosts, in red, and one of the most dominant teams, CPFI, coming forward with their officials to showcase what the sport means to them. Joining me in the commentary box to take you further through this incredible fixture is another expert of this game, and he is none other than ex-World Cupper, ex-medal winner, in fact ex-gold medal winner, Mr. KK Soni. A very warm welcome and a very good evening, sir. Thank you, Rohit. Before that, we can continue with the match. This is half an hour game actually, divided into 4 chakkar of 7.5 minute each. The dimension of the ground is 120 by 100 meter. So this game is very popular, not only popular in India, even world also. We have played 12th World Cup. 8th we have won continuously in the history of Indian bicycle polo. 4th we won in one championship we could not attend due to some circumstances by Indian government. We got the 2 bronze medal and 3 silver medal in that. So total 12 World Cup has been completed so far, and we have won continuously 6 in a row. Thank you. Well, of course, what Soni sir just mentioned, 6 gold medals. Believe me, that is no easy task. Opportunity for CCFC straight away. And it looks like they were close, but not close enough to convert that into a goal. Just to give you all a quick introduction, the CPFI officials are dressed in their signature yellow and blue, wherein the home side, the CCFC, are dressed in their flamboyant yellow and red bibs. And an opportunity for CCFC to take an early start, to get that early goal, but then again CPFI officials just showing why they are one of the finest in business when it comes to teaching the kids. In fact, this can be an opportunity for CPFI to get the opening goal, and look at how cool and how calm they were under the pump, and they have drawn first blood here in the exhibition match. Ladies and gentlemen, whoever is watching, mark my words, it's just an exhibition match for the sake of it. When these officials, when these very young gentlemen, to be honest, to take the yard, there is no camaraderie. It's all about ferocious, fierce rivalry that you will see manifesting on the ground. So, अभी हम सिर्फ गेम्स के बारे में बताना है, और दूसरे चक्कर की शुरुआत के लिए अंपायर्स मैदान में पहुंच चुके हैं, और अब एक बार फिर से अंपायर्स बॉल को थ्रो इन करने के लिए तैयार। आज्ञा लेने के तुरंत पश्चात देखिए एक बार फिर से खेल शुरू कराने का निर्देश देते हुए बॉल को लेना चाहते थे पीके तिवारी, और हिट मिल गया है साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया टीम के खिलाड़ियों के पक्ष में। पीके तिवारी, दूसरे खिलाड़ी प्रणय पिल्लेवर। पीके तिवारी का यह तेज शॉट हवा में लहराता हुआ लेकिन दिशाहीन शॉट बॉल बैकलाइन के बाहर जाती हुई। गोल जज द्वारा बॉल को बैकलाइन पर रखा गया है। हिट लेने के लिए बॉल की तरफ बढ़ते हुए वेस्ट बंगाल टीम के एकमात्र खिलाड़ी नील का यह तेज हिट अपने साथी खिलाड़ी के लिए। अच्छा प्रयास, वैसा ही हिट दोबारा से एक बार फिर से बॉल को हिट किया जाएगा। 45 मीटर का यह हिट
जो ग्रीन फ्लैग है इसके पास रखा गया है। बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए वेस्ट बंगाल टीम के एकमात्र खिलाड़ी, वेस्ट बंगाल साइकिल पोलो एसोसिएशन वर्सेस साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक ऑफिशियल्स के मध्य में ये मैच खेला जा रहा है। और आगे का आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे मिस्टर रोहित। थैंक यू रोहित। Well, thanks a lot, of course. Just at the moment, look at that last swing of Malay, just the kind of force that was following suit. It was mighty close, to be honest. And for everyone who's, we have a very famous maxim in English that age is just a number. And as I mentioned earlier, this incredibly young gentleman, that is an ode to the kind of intensity that these chivalrous gentlemen bring to the game. When they take the yard, the kind of intensity they cook up, whether it's speeding up with the cycle, maintaining the balance, maintaining the line of play, and eventually getting hold. That's another ferocious swing and another goal at the moment for CPFI. CPFI are one particular team that doesn't really hold back their punches. When they punch, they ensure that they are punching it hard enough. And it's the second time of the day that CPFI has found a goal for themselves. धन्यवाद रोहित, सही कहा आपने। बहुत ही मजबूत टीम है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं उनके पास, यंग खिलाड़ी, यंग एंड एनर्जेटिक प्लेयर्स। ये देखिए पीके तिवारी काफ़ी तेज़ तर्रार बॉल के ऊपर घूमे, जगह बनाने की कोशिश, एक और मौका उनके पास, लेकिन वेस्ट बंगाल टीम के खिलाड़ी पूरी कोशिश में अभी तक अपना खाता खोल पाने में असमर्थ। अच्छे खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों द्वारा। अंपायर्स ने प्ले कहा है और बॉल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास। अच्छी कोशिश, एक बार फिर से बॉल के ऊपर जाने की कोशिश करते हुए परलेवर CPFI टीम के मेंबर खिलाड़ी हैं, बॉल को पीछे छोड़ दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। ये देखिए बॉल को लेने का प्रयास, प्रणय द्वारा बॉल को आगे धकेल दिया है पीके तिवारी के लिए। तिवारी ने बॉल को हिट किया लेकिन बॉल इसी बीच बैक लाइन के बाहर जाती हुई। अच्छा प्रयास, दूसरे चक्कर का खेल खेला जा रहा है। 7.5 मिनट के 4 चक्कर खेले जाएंगे। ये देखिए स्लो मोशन में बॉल बैक लाइन से बाहर जाती हुई। अच्छा प्रयास, CPFI 2 गोलों की बढ़त बनाए हुए, जबकि वेस्ट बंगाल टीम को अभी अपना खाता खोलना बाकी। The last opportunity that you witnessed to CPFI coming very close towards getting that third goal of theirs, and now CCFC, this can be a chance, another frenetic swing off the Malay, but then that was nowhere close. Again, not really the best of clearances, the finest of clearances, but then look at CPFI, they are quick to clear their danger lines, and now they want to come closer to the ball, they want to pedal past their counterparts. This can be another opportunity, mighty close to the goal, just one more touch needed. Can they get it back in? Well, he has left it for his comrade there, who will take the second touch, and with the third touch, very cool, very calm, just help it on its way to cross the goal line. That's the third goal for CPFI, and they are roaring like absolute lions under the sweltering heat of Kolkata. बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन निश्चित तौर पर साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, बहुत ही तेज़ तर्रार। रूल रेगुलेशन के बारे में उन्हें सब पता है, कहाँ पर किस बॉल को किस तरह से, किस अंदाज में, किस तरह से उसको फिनिश करना है, किस तरह से रिसीव करना है। RPP पर खेलते हुए रिसीव, पास एंड पोजीशन, और इसी बीच दूसरे चक्कर की समाप्ति।
ये जो अभी अब घंटी अब आपको सुनाई दी है, ये तीसरे चक्कर के लिए दोनों टीमों के खिलाड़ी एक बार फिर से मैदान में प्रवेश करते हुए। अंपायर्स तैयार, गोल जजेस तैयार हैं और अब खिलाड़ी भी तैयार। देखिए किस प्रकार से देखना होगा, क्या नई रणनीति लेके उतरे हैं। फिलहाल अच्छे खेल का प्रदर्शन निश्चित तौर पर, बहुत ही अच्छा हरा भरा ग्राउंड। ये है कि सोनी उनके पीछे खड़े हैं पीके तिवारी। 1 नंबर और 2 नंबर जो होते हैं फ्रंट लाइन चेसर, 3 और 4 नंबर जो होते हैं पूरा बैक का एरिया उनको कवर करना पड़ता है। फिलहाल अंपायर तैयार और बॉल को रोल कर दिया है गया दोनों टीम के खिलाड़ियों के मध्य में, मध्य रेखा के बीचों बीच। पीके तिवारी ने बॉल को अपने कब्जे में किया है और यहाँ पर ये फाउल के रूप में हिट साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया टीम के ऑफिशियल्स को। ये देखिए बॉल को सेट करते हुए, जिससे कि शॉट को खेलने में कोई असुविधा ना हो, उठा कर रखा है बॉल को ग्रास के ऊपर। अच्छा प्रयास पीके तिवारी, बॉल की लाइन के ऊपर निशाना साधा और ये देखिए तेज शॉट हवा में लहराता हुआ, कोशिश की गई थी, वहाँ पर पहुँचे जरूर थे लेकिन बॉल बैक लाइन के बाहर। अच्छा प्रयास, इसी बीच बॉल को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश। ये देखिए पीके तिवारी एक बार फिर से बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन, लेकिन बॉल को गोल के अंदर प्रवेश नहीं करा पाए। बॉल फलस्वरूप बैक लाइन के बाहर जाती हुई। एक कोशिश जरूर की गई थी, बॉल के ऊपर निकले जरूर थे प्रणय, लेकिन जब तक बॉल को रोक पाते उससे पहले ही बॉल बैक लाइन पार कर चुकी। तीनों खिलाड़ियों का देखिए मूव बनता हुआ, यहाँ से बॉल को लेकर आगे गए जरूर हैं और ये देखिए बॉल को के सोनी, काफ़ी नज़दीकी मामला। अच्छे खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल लड़ा भारी साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाड़ियों का। अच्छा बचाव और आगे का हाथ को देखा हाल सुनाएंगे आपको रोहित। ओवर टू रोहित। Thank you so much, Sony sir. And yes, as you pointed out, time and time again, CPFI, they're coming closer, and CCFC, they're kind of defending for lives right now. They've done well. Once again, CPFI was mighty close towards scoring. Once again, pretty close, and somehow just rattling the post on that occasion. And the goal just placing the ball from where it's got out of the ground. Here's an opportunity for CCFC to try and break free. A massive swing of the Malay. However, the ball doesn't really cover the distance that they were expecting it to. And a defensive interference there from CPFI. But then a reverse hit can be an opportunity for CCFC. They come knocking on the doors. There's the first touch. They've gone slightly acute. That's a second touch, but unfortunately, the angle not really supporting CCFC's cause on that occasion. Well, they will have to restart, they will have to regroup themselves, and they will have to try and find their mark as quickly as they can. बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है CCFC द्वारा, लेकिन अभी तक अपना खाता खोल पाने में नाकाम। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके पास काफ़ी अनुभव। ये देखिए मनोरंजन बॉल को हिट करना चाहे थे गोल माउथ के काफ़ी करीब इन द विजिनिटी ऑफ द गोल पोस्ट, लेकिन बॉल को गोल के अंदर प्रवेश कराने में नाकाम। यहाँ पर एक पेनल्टी जरूर मिली है, देखना है इसका फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं। देखिए यहाँ पर भी ये मिस कर गए। बहुत अच्छा प्रयास किया गया था, काफ़ी नज़दीकी मामला था, आराम से जाते कोई खिलाड़ी वहाँ पर नहीं सकता। बॉल को रोकने का कोई फ्री हिट था और ये धूल जरूर उड़ी है, लेकिन बॉल गोल पोस्ट के काफ़ी करीब से होती हुई बाहर निकल गई। किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। CPFI साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ
इंडिया के खिलाड़ियों को देखिए, बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों द्वारा। जहां से बॉल बाहर गई थी, गोल जज द्वारा बॉल को बैकलाइन पर रखने के पश्चात हिट लेने के लिए धीरे धीरे बॉल की तरफ बढ़ते हुए पीके तिवारी। एक बार फिर से अंपायर तैयार हैं और बॉल को थ्रो इन किया जा रहा है। दोनों एक स्टार्ट लेना पड़ता है वहाँ से, हर बॉल के पश्चात, हर गोल के पश्चात। खेल एक बार फिर से शुरू किया गया है। बॉल को अपने कब्जे में लेकर आगे धकेल दिया है। दूसरे छोर से होती हुई बॉल बैक लाइन के बाहर चली गई है और 45 मीटर का यह हिट। ये देखिए, बॉल को बाहर निकाल दिया है इन्होंने, अपने ही गोल पोस्ट से बाहर निकली है बॉल। तो 45 मीटर का यह हिट CPFI साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया के टीम के खिलाड़ियों के पक्ष में। दोनों खिलाड़ी देखिए बॉल को लेने का प्रयास, अच्छे खेल का प्रदर्शन, लेकिन अभी तक अपना खाता खोल पाने में नाकाम CCFC टीम के खिलाड़ी। और मैं गुजारिश करूंगा कि रोहित आएँ और आगे के बारे में कुछ आपको नया बताएं। धन्यवाद। To be honest, if you would ask me to narrate something new, I reckon we'll have to wait and watch. But at the moment, the recurring tale of this fixture has been the Imperious Dominion, knitted there by CCFI. And then KK Soni was there on the ball, very close. Almost trying to swing that ball back in the field of play, hoping that any of his teammates would be taking position. Unfortunately, by the time the swing came dashing through, the ball went on to hit his own wheels and eventually repelled off it. Here comes CCFC. That's the second hit. Now he will be hoping that there is someone. There is much more hope on that shot rather than execution, much more optimism on that shot rather than conviction. But again, as things stand at the moment, CPFI currently holds the ace of this fixture. And they are still not only leading this match, but they are also dominating the yard of play. Here comes CPFI. This can be an opportunity. So close, but that's a lovely bit of assist. Look at this goal. That is sensationally done. That's what you call a setup. That's what you call a perfect layoff. And keeping his eyes on the ball like a hawk from the skies. An absolute predator scavenging for it and putting it into the back of the goal. Sensational finish, and CPFI once again the top of their class. बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों द्वारा फिलहाल पलड़ा भारी साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाड़ियों का। बहुत ही अच्छे खेल का, बहुत ही संतुलित तरीके से तालमेल के साथ लगातार गोलों की बौछार करते हुए। और यहाँ पर देखना होगा कि एक और चक्कर की समाप्ति, दोनों टीमें बाहर जाती हुई और अब रेस्ट लिया जाएगा उनके द्वारा।
तीसरे चक्कर के लिए टीमें एक बार फिर से मैदान में प्रवेश करते हुए ये देखिए क्या नई रणनीति लेके उतरते हैं, बताते हुए कि मैं इस पोजीशन पे खेलूँगा और मेरी पोजीशन ये रहेगी, यहाँ से हम अटैक करेंगे और यहाँ से हम ऑफेंड करेंगे। दूसरी तरफ रेड कलर की जर्सी पहने हुए CCFC क्लब की टीम नील के नेतृत्व में अच्छे खेल का प्रदर्शन दोनों टीमों के खिलाड़ियों द्वारा। फिलहाल 0 के मुकाबले 3 गोल की महत्वपूर्ण बढ़त बनाने में कामयाब साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया टीम के ऑफिशियल्स की टीम। पोजीशन लेते हुए एक सेंटर पॉइंट है, मध्य रेखा है, जहाँ पर टीम अपनी पोजीशन लेती है उचित स्थान पर। और ये देखिए अंपायर बॉल को थ्रो इन करने के लिए तैयार, रोल करते हुए अंडरहैंड। यहाँ पर एक मूव बनता है, देखना होगा उसका फ़ायदा उठा पाएंगे या नहीं। ये देखिए बॉल को पहला गोल बनाने में कामयाबी अपने टीम के लिए। पहला गोल CCFI की तरफ से, CCFC क्लब बहुत ही अच्छा मूव बनाया उन्होंने ये, और पहला गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिलाने का प्रयास करते हुए अच्छे खेल का प्रदर्शन निश्चित तौर पर। ये देखिए रेड फ्लैग इस बात का सूचक कि यहाँ पर पहला गोल बनाकर CCFC के खिलाड़ी काफ़ी प्रसन्न। अंपायर एक बार फिर से बॉल को हिट करते हुए नील CCFC क्लब के खिलाड़ी, अच्छा प्रयास उनके द्वारा। निश्चित तौर पर दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छे खेल का प्रदर्शन करती हुई, लेकिन एक के मुकाबले अभी भी 3 गोल की बढ़त। और यहाँ पर एक मौका फिर से बना है, तिवारी बॉल के ऊपर पहुँचे हैं, लेकिन उससे पहले की बॉल को ले पाते बॉल को क्लियर कर दिया गया है CCFC टीम के खिलाड़ी द्वारा। ये यहाँ पर एक मास शॉट ऐसा है जो कि नियर साइड से बैकेट लगाया जाता है, वरना जितने भी शॉट्स खेले जाते हैं साइकिल पोलो में ऑफ साइड से खेले जाते हैं। जैसे कि ओवरथ्रो करते हैं फुटबॉल में, उसी तरह से ये नया शॉट ईजाद किया गया है कि समय वेस्ट ना हो। इस वजह से देखिए बॉल को हिट कर दिया गया है, गलत तरीके से बॉल को लेने की कोशिश एम्पायर द्वारा फाउल के रूप में यह हिट एक बार फिर से साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया के टीम के पक्ष में। यहाँ पर मौजूद हैं PK तिवारी बॉल को हिट करने के लिए, और ये बॉल को हिट किया है लेकिन बॉल को ले पाने में नाकाम। देखिए हिट करते हुए बॉल बाहर चली गई है, किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं। अच्छा हिट जरूर लगाया लेकिन उसको दिशा नहीं दे पाया, फलस्वरूप बॉल बैक लाइन के बाहर जाते हुई। आगे की आंखों देखे हाल के लिए मैं रोहित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और आगे का आंखों देखा हाल जारी रखें। CCFC kind of egging themselves. They try and score. Now look at this one. This was another close opportunity. Now this has been one particular problem that has been somewhat persistent for Calcutta Cricket and Football Club. Now this one, almost the entire goalkeeping, and it wasn't just the entire goalkeeping. There was a player stationed right at the goal line. So even if he could have actually assisted that, another opportunity ferociously struck, but then misses the mark by an inch. Just when it felt like CPFI would be condemning CCFC for their profligacy up front, for a moment it was being taken care of. A very ferocious shot, but not on target.
Here's another opportunity though, and now CCFC keeps on driving forward slowly and steadily. Another good bit of work. Can CCFC make this count? Here they come, but CPFI once again with the defensive interference and a reverse hit on that occasion. There's a lot of space ahead. And CPFI pedaling faster than ever, putting in, that's a lovely bit of assist for one of their teammates. And just when it felt like this could be another opportunity brewing on the horizon, another tornado coming in shape, they had missed their mark. But nonetheless, the domination continues. In fact, apologies for that. And CPFI simply amping up the kind of tempo that they have knitted together right from the word go. Can they make all this domination count? Can they score more than ever? CCFC definitely desperate to try and keep the ball as far away as they can from the scoring line. Here's CCFC once again. That's a second touch. He'll have to go forward with the third touch, but before that could come in, CPFI with an excellent defensive maneuver and a reverse hit once again. A bit of space ahead, but then again a crucial interception, allowing CCFC to deny CPFI any space whatsoever. थैंक यू रोहित, बहुत ही अच्छा आपने व्याख्यान दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया. फिलहाल बॉल बैक लाइन के बाहर निकलती हुई. अच्छा प्रयास साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया टीम के खिलाड़ी प्रलय बॉल को हिट करने के लिए आगे बढ़ते हुए. अच्छा प्रयास उनके द्वारा. बॉल जा रही है, नील बॉल के ऊपर है और नियर साइड से बॉल को लेने का प्रयास. प्रणय पीछे धकेला है बॉल को अपने साथी खिलाड़ी के लिए. एक बार फिर से अच्छी कोशिश. CCFC एकमात्र गोल बनाकर अपना खाता खोलने में ज़रूर कामयाब है, लेकिन 3 गोल बनाकर साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाड़ी काफ़ी प्रसन्न और मजबूत स्थिति में. यहाँ पर एक और मौका देखिए, फ्रेम शॉट लगाया है, बॉल चली गई है. फ्रेम शॉट मीन्स दोनों व्हील्स के नीचे से जो बॉल जाती है, अंडर व्हील, ये जो चला रहे हैं साइकिल, यहाँ से बॉटम जहाँ पर से इनका जूता चल रहा है वहाँ से ये देखिए, इसको फ्रेम शॉट बोला जाता है. बॉटम एट अंडर व्हील, यहाँ से भी आप जब खिलाड़ी ब्लॉक करते हैं आपको तो इधर से बॉल निकाल सकते हैं, पर ऐसा हो ना सका. अच्छा प्रयास किया गया था उन्होंने, लेकिन चूँकि बॉल बैक लाइन के बाहर जाती हुई, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं. CCFC अभी भी 1 के मुकाबले 3 गोल की बढ़त बनाकर मजबूत स्थिति में. बहुत ही अच्छा भव्य ग्राउंड यहाँ पर, 232 साल पुराना ऐतिहासिक CCFC क्लब. देखिए किस प्रकार से ग्रास पे जो ग्राउंड है उस पर अतिरिक्त ऊर्जा खिलाड़ियों को लगानी पड़ती है, और इसी बीच तीसरे चक्कर की समाप्ति.
चौथे व अंतिम चक्कर के लिए अंपायर्स एक बार फिर से तैयार। मिस्टर अर्नब सेन को इस चक्कर में उतारा गया है, खिलाया जाएगा उनकी सब्स्टिट्यूट प्लेयर। 80 साल के खिलाड़ी हैं अर्नब सेन और ये उनके सुपुत्र नील सेन। ये देखिए मिस्टर सोनी तेज गति से निकल कर आए हैं। बॉल के ऊपर जाने का प्रयास, हिट कर दिया है बॉल को, फिर से बॉल के ऊपर जाने की कोशिश। चौथा व अंतिम तथा निर्णायक चक्कर है। तेज गति से बॉल के ऊपर जाने की कोशिश, धीमा बैकेट शॉट के सोनी का अपने साथी खिलाड़ी के लिए उसी अंदाज में बॉल को हिट करना चाहते थे CPFI टीम के खिलाड़ी। CCFC एकमात्र गोल बनाकर अभी भी 2 गोलों से पिछड़ती हुई। तेज बैकेट शॉट, अच्छे खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों द्वारा। परने बॉल को अपने कब्जे में किया है और हिट कर दिया है। खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं PK तिवारी, लेकिन उससे पहले ही बॉल को बैकेट शॉट लगाकर क्लियर करने की कोशिश। अंपायर बॉल को उठाते हुए और रखते हुए उचित स्थान पर जहां पर फाउल हुआ है। दोनों अंपायर्स एक बार फिर से PK तिवारी, साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया CCFC, CC&FC कैलकाटा क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब, लाल कलर की जर्सी पहने हुए। दूसरी तरफ साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया ब्लू कलर की जर्सी में, जिन्होंने 3 गोल बनाए हैं और एकमात्र गोल बनाकर CCFC क्लब अभी भी मैदान में डटी हुई। निश्चित तौर पर अच्छे तो खेल का प्रदर्शन, बॉल को सेट कर रहे हैं जिससे शॉट को खेलने में कोई असुविधा ना हो। खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं दूसरे छोर पर। ये देखिए बॉल को हिट किया जा रहा है PK तिवारी द्वारा। बॉल को लिया गया है, रोकने की कोशिश, हवा में लहराता हुआ शॉट, लेकिन उसको दिशा नहीं दे पाए। फलस्वरूप बॉल बैक लाइन के बाहर। मैं गुजारिश करूंगा रोहित से कि वो आगे का आंखों देखा रोजी आपको सुनाएंगे। And at the moment, as things stand, CCFC still fighting their way off, still trying to find that all-important goal. And there you go, CCFC. They have found the goal once again. A few smiles blooming on their face. Look at how carefully he just made his way to the goal mouth. And very cool and calm under the pump. It isn't easy, to be honest, just showing the temperament, just showing the maturity. And off we pop into the goal, into the back of what we call the posts. And yes, a few moments ago, Sony sir was talking about how age has never been a concern. We know there have been people who have somehow, like been struggling close to the age of 55 and 56 as well. And then we have a man who's an octogenarian, who's amongst us, who is showing his cycle polo skills, not just maintaining the speed, not just maintaining the balance, but also maintaining the swing of the mallet and ensuring the fact that his team keeps on battling. A rare slip-up. It's good to see that he's back on a cycle as well. But at the moment, CPFI still holds the lead in this crucial fixture and attempt to try and defend. But CCFC will have to do better than that as CPFI keep on pressing the pedal harder, literally and figuratively as well. धन्यवाद रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने। एज कोई मैटर नहीं करती, खेल की कोई उम्र भी नहीं होती। फिलहाल खेल अभी भी जारी है।
अच्छा प्रयास दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों द्वारा। और ये देखिए धीमा बैकहिट शॉट अपने साथी खिलाड़ी के लिए, यहाँ पर खतरा हो सकता है। बॉल को लेकर गोल माउथ के काफ़ी करीब निकलते हुए एक और कोशिश, रेड फ्लैग इस बात का सूचक कि एक और गोल वहाँ पर टीम ब्लू के खिलाड़ी साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाड़ी बनाने में कामयाब। प्रलय पिल्लेवर अपनी टीम के लिए एक और गोल का योगदान उनके द्वारा, निश्चित तौर पर अच्छे खेल का प्रदर्शन। दूसरी तरफ 2 गोल बनाने में कामयाबी सीसीए एंड एफसी क्लब को। और देखना होगा, जी हाँ, इसी बीच इस मैच को 4 के मुकाबले 2 गोल बनाकर इस मैच को जीतने में कामयाब। शायद ओवर हो गया। और इस मैच को 2 के मुकाबले 4 गोल बनाकर कैलकाटा क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब के हाथों से छीन लिया है साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया टीम के खिलाड़ियों ने। बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन, दोनों टीमों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।